स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. टॉपिक इज टाइप्स ऑफ RNAs. In our previous lectures we have done transcription, we have done translation. In those topics also we discussed about RNA. But in today's lecture we will discuss the various types of RNAs, their structure and their functions in detail. Okay, now before we start the types, you should know what is the full form of RNA. RNA is ribonucleic acid. It is a polymer of ribonucleotides. Now students, what is a polymer? Polymer is a molecule which is made up of several monomers which are joined together with the help of a bond. So in RNA, the ribonucleotides, they are joined together with the help of phosphodiester linkage. So you can see these are the ribonucleotides. They are joined together with the help of phosphodiester linkage. RNA is a single-stranded molecule, whereas DNA is a double-stranded molecule. Now, in eukaryote as well as in prokaryote organism, there are three main classes of RNAs. चाहे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है चाहे प्रोकैरियोटिक है, उसमें तीन टाइप्स के RNAs पाए जाएंगे. कौन कौन से हैं बेटे? ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA एंड मैसेंजर RNA. Let's discuss all these types one by one. Okay, first we will discuss about mRNA. Full form is messenger RNA. As the name indicates, messenger means it takes a message, and from whom it will take message? It will take message from the DNA. We know that DNA is the master molecule and mRNA is the copy of that master molecule. mRNA comprises only 5% of the RNA in the cell. बेटे आपको ये जो परसेंटेज है RNAs की वो आपको लर्न करनी है. बुक में 1 to 5% भी लिखा हुआ हो सकता है. सो MCQ में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है. 3%, 4%, अगर बिलो 5% है, ऑप्शन कोई दी हुई है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, तो यू कैन टिक दैट ऑप्शन विच इज बिलो 5 और 5 करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है? इट इज लेस स्टेबल, इतना स्टेबल नहीं है एज कंपेरिजन टू द अदर RNAs. क्यों स्टेबल नहीं है? तो हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि mRNA क्या है. जैसे ही वो DNA से इंफॉर्मेशन लेता है, फटाफट उस इंफॉर्मेशन को कोड्स कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, बिकॉज इट इज लेस स्टेबल. इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द DNA टू प्रोटीन फैक्ट्रीज. DNA से इंफॉर्मेशन जैसे ही लेगा, वो इंफॉर्मेशन प्रोटीन फैक्ट्रीज को ट्रांसफर हो जाएगी. व्हाट आर प्रोटीन फैक्ट्रीज? Yes, you are right. Ribosomes are the protein factories. And this information is present in the form of codons, which is complementary to the DNA template. अब कैसे बेटे? हमें पता है this is our DNA template. Suppose इसके ऊपर information है adenine, thymine, guanine, cytosine. Clear? Let's change the color. This is RNA. RNA के ऊपर थायमिन तो है नहीं. कॉम्प्लीमेंट्री क्या होएगा? यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन. So this information is present in the form of codons. Codons are present in triplet condition. ठीक है? So which is complementary to the DNA template. Clear? Now let's come to the structural characteristics of messenger RNA. स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं. सो दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ mRNA, 5' एंड 3' एंड. क्लियर बेटा? सो 5' एंड पे आप देख रहे हो कैपिंग है, 3' एंड पे टेलिंग है. कैपिंग किस चीज की होती है? आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, जब mRNA न्यूक्लियस से बाहर आता है तो उससे पहले ही इसकी 5 एंड पे कैप लगा दी जाती है एंड दैट कैप इज 7-methyl guanosine ट्रिपल फॉस्फेट कैप. ये कैप लगा के ही mRNA का एक्सपोर्ट होता है इनटू द साइटोप्लाज्म.
और उसके 3 प्राइम एंड पे पॉली एडेनाइलेटेड टेल होती है, एडेनिन 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 एडेनिन, several adenines are repeated to form a tail that is called poly A tail at the 3 prime end. अब कैपिंग एंड टेलिंग का फंक्शन क्या है? जो कैप है 5 प्राइम एंड पे, इट प्रोटेक्ट्स द डीएनए फ्रॉम द आरएनए फ्रॉम द डिग्रेडेशन, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से इसको बचा के रखती है. सेकंड, एमआरएनए की रिकॉग्निशन होती है जब राइबोसोम बाइंड करता है यहाँ पे आके, तो इट हेल्प्स इन द रिकॉग्निशन ऑफ एमआरएनए फॉर बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स. 2 फंक्शंस हो गए कैपिंग के. सिमिलरली टेलिंग का भी सेम फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट्स द आरएनए. एंड सेकंड फंक्शन इसका क्या है? इट हेल्प्स इन टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन. इट हेल्प्स इन टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन. 2 फंक्शंस कैपिंग के, 2 फंक्शंस टेलिंग के. एंड इमीडिएट आफ्टर कैप यू कैन सी दीज आर द यूटीआरस, अनट्रांसलेटेड. सिमिलरली टेलिंग के भी इमीडिएट पहले क्या है? यूटीआरस. These are the untranslated regions. These are non-coding regions in the mRNA. Or in between, these are the coding regions. These are the coding regions. Clear? These are the coding regions which actually codes for the protein. So this is the structure of mRNA. Clear? Now, second, come to the transfer RNA. As the name indicate, ट्रांसफर, इट विल ट्रांसफर अमीनो एसिड्स. ठीक है. अब बेटे एमआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बीच में ही टॉपिक मर्ज किए हुए हैं, लेकिन ट्रांसफर आरएनए का टॉपिक हमारी बुक में सेपरेट एक जो है अलग से टॉपिक दिया हुआ है. इसे हमें बहुत ध्यान से करना है. पूरे का पूरा टॉपिक है जो अच्छी तरह से समझना है. ट्रांसफर आरएनए 10 to 15% ऑफ द टोटल आरएनए. एमआरएनए कितना था स्टूडेंट्स? 1 to 5%. ट्रांसफर आरएनए स्मॉलेस्ट ऑफ द ऑल आरएनए. सारे आरएनए से इसका साइज छोटा है. इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस बाय द डीएनए. सारे ही आरएनए डीएनए से जो सिंथेसाइज्ड होते हैं. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, वो भी आरएनए बनाता है, हम बाद में देखेंगे. इट इज कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए. Why soluble? Because it is soluble in 1 ml of sodium chloride solution. इसीलिए इसको soluble RNA भी कहा जाता है. It is an adapter molecule, very important feature. फ्रांसिस क्रिक साइंटिस्ट जिन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए भी सजेस्ट किया था, उन्होंने बोला कि इट इज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ इट्स 2 फंक्शंस. कौन से फंक्शंस हैं इसके? 2, जिसके करके इसको अडेप्टर बोला गया. एक तो एक कैरियर ऑफ अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड को कैरी करके लेके आता है. दूसरा, इट रीड्स द कोड्स ऑफ एमआरएनए. इनफैक्ट ये पहले एमआरएनए के कोड्स को रीड करेगा, कोडोन्स को रीड करेगा, उसके बाद स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ये कैरी करके लेके आएगा. क्लियर? इट हैज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज द क्लोवर लीफ, ट्राइफोलियम, 3 पत्तियों जैसे आकार की शेप है इसकी, क्लोवर लीफ है. ठीक है. So we will discuss this clover leaf structure in detail. This is the clover leaf structure. Actually this is secondary structure because जो RNA है that is single stranded. ठीक है. लेकिन क्या होता है ट्रांसफर RNA के केस में, इसमें कुछ अनयूजुअल बेसिस होते हैं. जैसे आप देख रहे हो थायमिन है. अब थायमिन तो RNA में होता नहीं है. सूडोयूरिडिन है, यहाँ पे आपको डी लूप दिख रहा है, बाद में हम देखेंगे. यहाँ पे डाईहाइड्रो जो है यूरिडिन है बेस. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस अनयूजुअल बेसिस, ये क्या करता है आरएनए, ये क्या करता है, कुछ लूप्स बना लेता है. और लूप्स के जो स्ट्रैंड्स हैं इनमें इंटरनल बेस पेयरिंग हो जाती है. दैट इज वाई दिस शेप कम्स आउट. दिस इज क्लोवर लीफ शेप. क्लियर? अब हम इसकी जो आर्म्स हैं इनको देखेंगे, कौन कौन सी आर्म्स हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया व्हाई इट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अगर स्ट्रेट है दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 5 मेन आर्म्स, या हम कह सकते हैं लूप्स भी कहते हैं इसको. फर्स्ट इज एक्सेप्टर आर्म. एक्चुअली वी शुड राइट अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म. सेकेंड एंटीकोडोन आर्म. थर्ड DHU आर्म. फोर्थ थायमिन सूडोयूरिडिन साइटोसिन आर्म एंड एक्स्ट्रा आर्म. एक्स्ट्रा आर्म को हम वेरिएबल आर्म भी लिख सकते हैं.
So these are the 5 types of loops or arms present in the transfer RNA. Let's discuss these arms. First is amino acid acceptor arm, that is at the 3 end. मैं आपको डायग्राम जूम करके दिखाती हूँ बेटे. This is 5 prime end, this is 3 prime end. 3 prime end पे आप देख रहे हो CCA बेस पेयरिंग है, that is unpaired. इनमें यहाँ पेयरिंग देख रहे हो आप, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग नहीं है. सो एडेनिन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर अमीनो एसिड आके अटैच होएगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म. सो हमने क्या लिखा है, एक्सेप्टर आर्म इज एट द 3 एंड. इट हैज अनपेयर्ड CCA. यहाँ पे हमने देखा अनपेयर्ड है बेस सीक्वेंस. The 3 prime hydroxyl end of the adenine binds to the carboxyl group of amino acid. यहाँ पे अमीनो एसिड बाइंड होएगा आके. क्लियर. सो दिस इज द एक्सेप्टर आर्म. सेकेंड एंटीकोडोन आर्म, इट लाइज ऑपोजिट टू द एक्सेप्टर आर्म. ये एक्सेप्टर आर्म है तो ये कौन सी है, एंटीकोडोन आर्म है. एंटीकोडोन आर्म का क्या काम है बेटे, हमें पता ही है कि जो ट्रांसफर आरएनए है वो रीड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एमआरएनए. एमआरएनए पे कोडोन्स हैं, ठीक है. तो ट्रांसफर आरएनए पे क्या होंगे, एंटीकोडोन्स होंगे. एंटीकोडोन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन्स. सो एंटीकोडोन आर्म लाइज ऑपोजिट टू द एक्सेप्टर आर्म. दिस इज एक्सेप्टर ऑपोजिट एंटीकोडोन आर्म. इट रिकॉग्नाइजेस द कोडोन्स ऑन द एमआरएनए. जो एमआरएनए पे कोडोन्स हैं उनको ये क्या करेगी, रीड करेगी आर्म. ड्यू टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इट विल बाइंड टू द एमआरएनए. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हमेशा कैसे बाइंड होते हैं, पेयरिंग कैसे होती है, विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स. क्लियर. थर्ड इज DHU आर्म या लूप, डाइहाइड्रोयूरिडीन आर्म. इट कंटेन्स मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड डाइहाइड्रोयूरिडीन, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज DHU. इट इज एन अनयूजुअल pyrimidine. अब फंक्शन क्या है DHU का, इट अलाउज बाइंडिंग ऑफ अमीनो असाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटिस एंजाइम. यहाँ पे एंजाइम क्या है, बाइंड होएगा DHU आर्म पे. जब एंजाइम बाइंड हो जाएगा वो क्या करेगा, फिर इट बाइंड्स अमीनो एसिड टू द एक्सेप्टर आर्म. फिर ये हेल्प करेगा अमीनो एसिड को बाइंड करने में टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द अमीनो एसिड एक्सेप्टर arm. Fourth is thiamine pseudouridine cytosine arm. It is called T arm because of the presence of thiamine. It is opposite to the DHU arm. ये DHU arm है तो ये हमारी कौन सी है, T arm है या T loop है. Clear? Why the name pseudouridine को ऐसे लिखते हैं बेटे, this is thiamine, this is pseudouridine, this is cytosine. ये इसकी complete arm का नाम है. अब फंक्शन क्या है, इट इन्वॉल्व्स बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफर आरएनए टू द राइबोसोम्स. जब ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेके आएगा तो राइबोसोम्स के साथ बाइंडिंग करवाएगी ये आर्म. ओके. वेरिएबल आर्म, इट हेल्प्स इन स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर आरएनए. हमने ये लूप किए हैं. दिस इज DHU आर्म, दिस इज एंटीकोडोन आर्म, दिस इज T आर्म एंड दिस इज 5 प्राइम एंड this is 3 prime end. So this is the variable arm. It can be present, it cannot be present. If it is present, it is called class 2 RNA, and it is absent, it is called class 1 RNA. It helps in stability of the transfer RNA. Transfer RNA को stability देती है variable arm. Now, third type is ribosomal RNA. बेटा स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन करते हैं कि हमने tRNA का स्ट्रक्चर भी देखा है, हमने मैसेंजर RNA का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, तो राइबोसोमल RNA तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता. एक्चुअल में क्या होता है, इट इज फाउंड इन द राइबोसोम्स. ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन जैसे ये 2 राइबोसोम्स के सब यूनिट्स हैं तो इट इज इन द कंडेंस्ड फॉर्म इन द राइबोसोम्स. दिस इज राइबोसोमल RNA. एंड इट इज 80% ऑफ द सेल्स टोटल RNA, सबसे ज्यादा अमाउंट होता है इसका. इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियोलस. दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है,
तो ये राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है। फंक्शन क्या है बेटे? इट अटैचेस टू द ट्रांसफर आरएनए विद लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। दिस इज अवर लार्जर सब यूनिट, दिस इज अवर स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, अब इसके बीच में क्या है? सपोज दिस इज अवर मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। अब क्या होगा? लेट्स ड्रॉ इट अगेन। This is our larger subunit, this is our smaller subunit, this is our mRNA 5 prime to 3 prime end. अब जो राइबोसोमल आरएनए है वो क्या करेगा? सपोज दिस इज our राइबोसोमल आरएनए। अब एक साइड से ये क्या करेगा? ट्रांसफर आरएनए जो ऊपर से आ रहा है उसकी अटैचमेंट करवाएगा लार्जर सब यूनिट के साथ, और दूसरी तरफ से ये क्या करेगा? एमआरएनए जो है, ये जो एमआरएनए है इसकी अटैचमेंट कराएगा स्मॉलर सब यूनिट के साथ। सो दो फंक्शन हो गए इसके। पहला फंक्शन क्या हो गया? इट अटैचेस टू द ट्रांसफर आरएनए विद द लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम एंड मैसेंजर आरएनए विद द स्मॉलर सब यूनिट। दिस इज द फंक्शन, these are the two functions of ribosomal RNA. So these are the three main types of RNAs which are found in the eukaryotic as well as in prokaryotic organisms. इसके अलावा भी बेटे 3 या 4 टाइप्स के RNAs होते हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार MCQ में आ जाता है। तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये वाले RNA तो हमने पढ़े ही नहीं है, हमने तो राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA या ट्रांसफर RNA के बारे में ही सुना है। ठीक है, तो सबसे पहले है जीनोमिक RNA. It is found in viruses called ribovirus. Ribo means RNA. जिन viruses में RNA is the genetic material, उनको हम क्या कहते हैं? ribovirus, and that is the genomic RNA. That means it is heredity. Second है catalytic RNA. It has the catalytic activity. अब कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट करता है। फास्ट कैसे करता है बेटे? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, या तो कोवलेंट बॉन्ड पहले ब्रेक करेगा, फिर दूसरे एटम्स के साथ फास्टली बॉन्ड्स बनवाएगा, तो रिएक्शन रेट क्या होगा? फास्ट होगा। सो कैटालिटिक फंक्शन होता है इस आरएनए का। ठीक है, थर्ड है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस। दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दे हेल्प्स इन स्प्लाइसिंग एंड प्रोसेसिंग। हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में जो इंट्रॉन्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है एक्सॉन से, तो स्प्लाइसिंग एंड प्रोसेसिंग उसमें जो है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए हेल्प करते हैं। स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, सी लिखा हुआ है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, दे हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ द राइबोसोम्स टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक क्या होता है? स्मूथ, और दूसरा क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों होता है? क्योंकि इस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो राइबोसोम्स की अटैचमेंट करवानी है तो उसमें क्या करेगा? स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए हेल्प करेगा। लास्ट टाइप है आरएनएआई, इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। जब हम रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर करेंगे तो उसमें हम जो बायोटेक्नोलॉजी में भी हम देखेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। तो इट हेल्प्स इन जीन रेगुलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस को कब स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है, तो ये आरएनए है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ आरएनएस। सो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा चैप्टर 6 है जो कंप्लीट होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब आपको क्या करना है? सारी वीडियोस जहाँ पे भी आपको डाउट लगता है इस चैप्टर की आपको फिर देखनी है। उसके बाद आपने बैक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो 1 मार्क इन द फॉर्म ऑफ MCQ है, या 1 मार्क इन द फॉर्म ऑफ फिलअप्स हैं, या 2 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं, या डायग्रामेटिकली क्वेश्चंस हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्टेड नहीं रहना चाहिए। ओके, so thank you. We will meet in the next lecture. Best of luck.